Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel. My name is Divyanshi Vashisht. I wrote CAT and ZAT last year, and in ZAT, I had 99.19 in the VALR section, and in CAT, I had a score of 96.88 in the VARC section. Currently, I've decided to repeat and give both the exams again in order to achieve a better overall score. Overall, in CAT, I had 91 percentile, and in ZAT, I had 88 percentile. I'm currently again preparing for CAT and XAT. Along with that, since I had good scores in the English section, I've been teaching CAT VARC with the Coaching Institute. I'm also mentoring students in the VARC section only because that is my specialty. Along with that, I'm also freelancing as a content creator on LinkedIn. I'll leave my handle below. So that's about me. And right now, currently, I'm introducing my own CAT 2024 crash course. I'll be covering the syllabus right from the basic level to the advanced level, each and every topic, along with the PYQs as well. If you're someone who's preparing for CAT 2025 and you want to self prepare, then you can benefit from this course as well. Diving right into the course. So let me just quickly give a syllabus overview, although I'm sure most of you have an idea by now. VRC syllabus can be divided into two parts, reading comprehension and verbal ability, right? So 80% of the section is reading comprehensions only, and reading comprehensions can come from anywhere under the sun. The topic could be from anywhere. Biology का passage हो सकता है, philosophy, geography, science and tech, history. तो अगर मैं बात करूँ तो जनरली चार आरसीज आते हैं एक कैट वी आरसी में चार आरसीज आते हैं उनमें से एक थोड़ा डिफिकल्ट साइड होता है। जनरली लोग क्या करते हैं वो क्विकली स्कैन करके एक डिफिकल्ट आरसी जो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है उसको वो पहले ही साइड रख देते हैं। दो आरसीज होते हैं जो मॉडरेट लेवल के होते हैं डुएबल होते हैं तो देन दे पिक दोस टू आरसीज टू सॉल्व अलोंग विद दैट देयर इज वन आरसी which is generally on the shorter easier side वो आपका 8 मिनट में हो जाएगा and the questions are also easier. So the key is to identifying these easy and moderate RCs and picking them first. Then the questions can be around the main idea, drawing inferences, conclusions, RC tones एक topic होता है, we'll be covering it going ahead. And these involve a healthy mix of critical reasoning questions. 20% of the paper is verbal ability. In verbal ability, there are many different kinds of questions, para jumbles, para summary, odd man out, fill in the blanks, para completion. अब जिसके भी आगे टीटा लिखा है उसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं उसमें आपको आंसर अपना कीन करना पड़ता है प्रॉपरली एंड जनरली द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैन बी ऑब्जर्व्ड अक्रॉस दीज क्वेश्चंस एज वेल। अगर तीन पैरा जंबल्स है एक थोड़ा इजी रहेगा एक डुएबल रहेगा और एक हो सकता है आपको करने में थोड़ी दिक्कत आए। सो कैट वी आर सी एज मच एज इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स इट इज ऑल्सो अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन बिकॉज वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत रेयर होंगे जो सारे क्वेश्चंस करके आना इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल इन 40 minutes. It's about picking the easier questions, right, and getting them correct. Now, this is very, very important, what I'm telling you right now. Odd man out एक type of question होता है. We'll be covering it going ahead. So what happened was, if I'm not wrong, in 2022, basically, odd man out was left out. ठीक है, वो paper का part नहीं था. तो ज्यादातर मॉक्स बनाने वाली कंपनीज ने क्या करा दे स्टॉप इंक्लूडिंग ऑड मैन आउट इन देयर मॉक्स। सो व्हाट हैपेंड वाज स्टूडेंट्स वर नॉट यूज्ड टू डूइंग ऑड मैन आउट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड जब एग्जाम में आया लास्ट ईयर 2023 में a lot of people solved them as para jumbles without really taking a look at the question कि question तो odd man out का था and they ended up losing marks. So what is really important, VARC में be prepared for surprises. Along with that, हमेशा एक बारी देख लो कि क्वेश्चन आपको क्या पूछना चाह रहा है राइट बिकॉज हु नोज नेक्स्ट ईयर और दिस ईयर पैरा जंबल्स माइट बी लेफ्ट आउट हु नोज राइट एनीथिंग कैन हैपन सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल वंस यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस. Okay, so talking about VARC preparation, according to me, I believe that there are three stages of preparation. ठीक है. The first stage is being able to comprehend the paragraph that is presented in front of you. क्योंकि अगर आप पैराग्राफ कोई आपके सामने है ठीक है और आपको वो पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा है तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे आगे बिकॉज जनरली वीआरसी में जो आते हैं पैसेजेस व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स आल्सो यू नो दे से कि हमको नहीं समझ आती इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश. सो व्हाट यू कैन डू टू कॉम्बैट दैट इज सेट आउट सम एक्स्ट्रा टाइम टू रीड मे बी इयन एसेज या गार्डियन से फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ताकि आपका थोड़ा वोकैब बिल्ड हो अगर आपको वो प्रॉब्लम है ठीक है. इफ यू रीड इन आरसी and you're able to understand it, then I personally don't think that you need to take out that extra time for reading per se.
So the stage two is pen and paper practice. Okay. Once you're able to understand the passages, you should watch videos, build your concepts, and start practicing PYQs right away, which is my biggest suggestion. PYQs are your best friends, they're your best source for the preparation. So practice PYQs, पेन एंड पेपर लेके टाइमर का इतना प्रेशर मत लो जब तुम स्टार्ट आउट कर रहे हो प्रैक्टिस करने में, राइट? जस्ट रफली टाइम योरसेल्फ कि सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मैं पेन एंड पेपर प्रैक्टिस से PYQ से जब मैंने स्टार्ट करा था, it used to take me 20 minutes to solve one RC. Okay, yeah, 20 minutes to solve one RC with around 80% accuracy. And with continued practice, I could bring that time down to 8 to 11 minutes. अब कोई easy RC होता है तो वो 8 मिनट में हो जाता है, कोई थोड़ा difficult होता है. Now I'm able to decrease my time even further. बट लास्ट ईयर जब मैं अटेम्प्ट देने गई थी तो 8 to 11 मिनट्स में मेरा एक आरसी हो जाता था. सो पेन एंड पेपर प्रैक्टिस, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना, PYQs करना, दैट ऑल ऑफ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. देन इज सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स. ओके, अगर आप नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हो सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स को, तो आपका कैट अच्छा नहीं होगा. यू हैव टू गिव सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक्स. सो वंस यू बिल्ड योर कॉम्प्रिहेंशन एंड यू फील लाइक यू कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्रिहेंशन, राइट, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, राइट अवे लास्ट 5 years के उठाओ. उसके बाद डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड जंप स्ट्रेट इनटू सेक्शनल्स एंड मॉक्स आफ्टर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स. नाउ व्हाई आर सेक्शनल्स एंड मॉक्स इंपॉर्टेंट? टू थिंग्स. सो हम में से ज्यादातर लोग, अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो हमने कभी उतने कंपेरेटिव एग्जाम्स नहीं दिए होते, राइट? साइंस बैकग्राउंड वाले ज्यादातर लोग जेई उन्होंने दिया ही होता है 12th के बाद मोस्टली. So to understand that difference between normal college के exams and a competitive exam, जहाँ आपके सर पे एक टाइमर है और नेगेटिव मार्किंग है, एंड द टाइमर जो है वो टिक 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 कर रहा है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी कि जब आप पेन एंड पेपर से प्रैक्टिस करते हो, you're able to solve things pretty well, right? But when you actually go into the sectional test or a mock, तो because of that timer का pressure आपसे वो solve नहीं हो पाता, which is completely understandable. I had a very similar problem. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, राइट? आपको अपनी नर्व्स को ट्रेन करना है उस टिकिंग टाइमर से यूज टू होने के लिए. एंड हाउ डू यू गेट यूज टू एनीथिंग? बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड मोर. सो नंबर वन रीजन फॉर प्रैक्टिसिंग sectionals and mocks has to be to train your nerves. And the second very important reason is personal strategy. Formulating your own personal strategy is very, very important. My attempt strategy may not work for you, your attempt strategy may not work for me. How will you know what is the best strategy for you when you go into mocks, when you go into sectionals, once you try different strategies? मैंने कितनी strategies try करी थी कि एक पहले VA कर लेते हैं, पहले RC कर लेते हैं, एक RC एक VA कर लेते हैं. हर चीज ट्राई करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है और किन क्वेश्चन से मुझे बेस्ट रिटर्न मिल रहा है, राइट? टिल लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू गिव कैट इन 2023, तो मुझे पैरा जंबल से कम अच्छा रिटर्न मिलता था. कंसिस्टेंटली मैंने ऑब्जर्व कर लिया था ये मॉक्स में, तो मैं पैरा जंबल्स को सबसे लास्ट के लिए ही रखती थी आफ्टर डूइंग द एंटायर पेपर. सो हाउ विल यू गेट टू नो कि आपको बेस्ट रिटर्न कहाँ मिल रहा है वो टिकिंग टाइमर के साथ? सो फॉर दीज टू रीजंस आई थिंक विद इन September any which way, don't delay giving sectionals and mocks anymore. Okay, so now I'll explain you some very very commonly asked terms in reading comprehensions. एकदम बेसिक लेवल से हम लेके चलेंगे. तो पहला टर्म होता है इन्फ्रेंस या इम्प्लीकेशन. तो इन्फ्रेंस या इम्प्लीकेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन ड्रॉ करना, राइट? तो इन्फ्रेंस कोई ऐसी चीज होती है जो सीधा सीधा नहीं लिखी होती है पैसेज में. वो एक कंक्लूजन है जो आपको किसी ने डेटा दे दिया और पूछा कि आप बताओ आप इससे क्या कंक्लूड कर पा रहे हो. सो दैट इज व्हाट एन इन्फ्रेंस इज. Then observation. And observation is something which is clearly stated in the passage. Okay, inference और observation में यही difference रहता है. Then if we talk about the main idea, which is very 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 important, आप लगा लो main idea का एक question तो आएगा ही mostly. So main idea या फिर fundamental idea हो गया या theme हो गया, या किसी question में आपको बोल दिया कि चलो मुझे इसका title बताओ आरसी का क्या होना चाहिए. So all of these revolve around the similar thing, which is the main idea. Main idea क्या होता है? अगेन लाइक लिसन वेरी वेरी केयरफुली. द मेन आइडिया इज जो ऑथर आपको बार 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 बताने की कोशिश कर रहा है. समथिंग दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल यू रिपीटेडली अगेन एंड अगेन एंड अगेन. दैट इज व्हाट द मेन आइडिया इज. नथिंग एल्स इज द मेन आइडिया, ठीक है? जब ऑथर एक इतना लंबा आरसी लिख रहा है तो उसमें आपको वो एक दो तीन चार इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स देगा. पर जब आप स्किम करोगे ऊपर से नीचे तक तो आपको दिखेगा कि यार एक चीज है जो ऑथर बार 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 अपने सारे पॉइंट से वो मुझे ये समझाना चाह रहा है. सो दैट इज व्हाट द मेन आइडिया इज. रही बात एसेंस की, सो एसेंस इज व्हाट द पैसेज इज ओवरऑल ट्राइंग टू टेल यू, राइट? देन वी हैव अजम्पशन.
Assumption is something which is required to be true for a given statement to hold true as well. This is very important for all snap aspirants as well. कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं स्टेटमेंट ए बोल रही हूँ, ठीक है, और मैं कह रही हूँ बी assumption है, तो स्टेटमेंट बी हैज टू बी ट्रू। अगर स्टेटमेंट बी सच नहीं है तो मैं स्टेटमेंट ए नहीं बोल सकती हूँ। लेट मी गिव यू गाइज एन एग्जाम्पल। ये स्नैप में बहुत कॉमनली एग्जाम्पल दिया जाता है समझाने के लिए। हाँ, so if there is a statement that unemployment allowance should be given to all unemployed youth above the age of 18 years, ये हमारी स्टेटमेंट है। और नीचे दो सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से कोई एक भी assumption हो सकती है या दोनों भी assumption हो सकती है। So I want you to pause the video, take a little bit of time and think कि for this statement to hold true, जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है, इन दोनों में से कौन सी assumption होनी चाहिए। दोनों होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, या कोई भी नहीं होनी चाहिए। Okay, I hope that you paused the video and you thought about it. So let's take a look at this. They are saying statement क्या कह रही है कि unemployment allowance जो है it should be given to all unemployed youth above the age of 18 years. ठीक है। Statement 1 क्या कह रही है? There are unemployed youth in India who need monetary support. And statement 2 क्या कह रही है? Government has sufficient funds to provide allowance to all unemployed youth. अब अगर स्टेटमेंट टू अगर सच नहीं है, अगर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो सारे अनएम्प्लॉयड लोगों को पैसे दे पाए, क्या मैं फिर भी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी है वो बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये अगर मैंने बोल दिया कि सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि सारे अनएम्प्लॉयड यूथ को वो दे पाए, ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक ऐसी चीज है जो कि दी जानी चाहिए 18 साल से ऊपर के हर अनएम्प्लॉयड इंसान को। सरकार के पास पैसे नहीं भी है तो भी मैं कह सकती हूँ कि यार कि ये दी जानी चाहिए, ठीक है, उनके पास पैसे हैं या नहीं है, that is not important. I am saying it should be given. So even if the country does not have enough funds, I can still say that okay, this is something that needs to be done. It should be done. अगर रही स्टेटमेंट वन की बात, देर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट, तो अगर मैं इसको निगेट करके देखूं कि देर आर नॉट अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट, can I still make the statement that unemployment allowance should be given to all unemployed youth above the age of 18? जब है ही नहीं अनएम्प्लॉयड यूथ इंडिया में जिनको पैसे की जरूरत है, तो फिर मैं बोल ही नहीं सकती, राइट? अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग ही नहीं है अनएम्प्लॉयड जिनको पैसे की जरूरत है इस देश में, सो कैन आई मेक दैट स्टेटमेंट? आई कांट मेक दैट स्टेटमेंट देन। सो हियर वन इज द assumption एंड टू इज नॉट नेसेसरली एन assumption। अगर अभी इतना क्लियरली समझ नहीं आया, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू। एज वी गो अहेड और अच्छे से समझ आने लगेगा। सो assumption बेसिकली कोई ऐसी चीज होती है विच हैज टू बी ट्रू फॉर अ गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू। ओके, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये काफी देखने को मिलता है। समथिंग दैट वीकन हो गया, ठीक है, इनवैलिडेट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया और अंडरमाइन हो गया। फोर वर्ड्स रिमेंबर: वीकन, इनवैलिडेट, contradict, and undermine. All of these four, they mean the similar thing, which is weaken only. Let's see. The statement that weakens a given argument, it must be in direct violation of a given statement. First, try to understand the meaning of a statement and then mark the one which is directly contradicting the statement. Many statements may seem like they're opposite to the passage, but we only have to mark the option which directly contradicts the argument which is given to us in the questions. तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट या कोई आर्ग्यूमेंट दे दिया इन कोट्स और कह दिया कि बताओ नीचे चार ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा है जो कि इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को वीकन करता है या इनवैलिडेट करता है। जनरली यू वुड ऑल्सो अग्री कि चार में से दो ऑप्शंस काफी इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। रही बची हुई दो ऑप्शंस की बात, तो इन दैट जनरली पीपल गेट स्टक। तो हो सकता है आपको दो ऑप्शंस ऐसे दिखे which are both against the paragraph, which are both contradicting the paragraph in a way. Okay, then you get very confused. In that situation, what you should do is you come back to the question, and our questions in VARC are very, very specific. आपको पूरा पैसेज में से कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं ढूंढनी है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट दिया गया है इन कोट्स जो कि आपको वीकन करना है। So when you come back to the two options, you will see here this is also 100% against the passage and this is also 100% against the passage. But upon a closer examination, you will see कि ये वाला option इनमें से एक ही है जो मेरे given argument का exact उल्टा है। So that is our answer. That's how you narrow down between the options. कि यार दोनों ही passage के against है, पर मेरा question तो मुझे सिर्फ एक argument को undermine करने के लिए बोल रहा है, वो exactly दोनों में से एक ही option है जो कि undermine कर रहा है। ओके, सो दिस इज, ये हो गई वीकन वायलेशन इस सब की बात। अगेन फोर वर्ड्स: वीकन, वायलेट, कॉन्ट्रडिक्ट
and undermine. Okay, all of these four words, they mean the similar thing. Okay, now let's take a look at this. Some golden rules of solving RCs, and after this, we'll dive right into our first RC. ये rules cover करने के बाद. Nothing that does not find a mention in the passage can be a part of our answer. This is very, very, very important. कोई भी ऐसी चीज जो कि पैसेज में मेंशन नहीं है हमारे सही ऑप्शन का पार्ट नहीं हो सकती. यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू व्हाट इज मेंशन इन द पैसेज. अगर आपके पास लेट्स से कि पॉवर्टी के बारे में कोई पैसेज है और आपको पॉवर्टी के बारे में बहुत कुछ वैसे पता है, आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हो, आपने पढ़ा है, अपनी खुद की नॉलेज को साइड रखो, सामने आपको एक पैसेज जो दिया है वो आपकी बाइबल है, आपका सारा डेटा, सारे आंसर्स उसी में से आएंगे. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, सो व्हेन आई से माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? सो लेट्स से कि आपको एक पैसेज दिया है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं, कोई नई थ्योरी आई है, उससे रिलेटेड है. And then when you're looking into the options, there is an option which says, okay, या फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछे, why is mitochondria important? Let's say passage में ये बात डिस्कस हुई थी और नीचे उन्होंने लिख दिया mitochondria is the powerhouse of the cell. ये एक ऑप्शन है. पर ये पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये एक चीज है जो आपको पता है, मुझे पता है, पर पैसेज में मेंशन नहीं थी. सिंस ये इस पैसेज में मेंशन नहीं थी, दिस कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर आंसर. ओके, आवर आंसर हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट इज सेड इन द पैसेज. कोई चीज कितनी भी सही हो, कितनी भी गलत हो, पर अगर वो पैसेज में नहीं कही गई है, इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर आंसर. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. Okay, now this is also very, very important. Pay grave attention to what is asked in the question. Each and every word carries some weight. And when I say each and every word, it really means each and every word. कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूछा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन या बेसिक प्रिमाइस या मेन आइडिया, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन वर्ड से क्या होता है? अगर आप दो ऑप्शंस में स्टक हो, दोनों ही कंक्लूजन्स लग रहे हैं, पर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, तो उन दोनों में से आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि यार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल आइडिया इसके मुझे आसपास लग रहे हैं, सो दिस विल बी माय आंसर. वाइल बोथ द ऑप्शंस पर से आर फैक्चुअली करेक्ट, बट आर दे आंसरिंग अ क्वेश्चन? नो, राइट? सो वी हैव टू इंश्योर कि एक एक वर्ड क्वेश्चन का इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, अभी जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्राडिक्टरी, वीकन, इनवैलिडेट, अंडरमाइन, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिसको हम बोलते हैं. देर ऑल द सिमिलर थिंग, दे मीन द सेम थिंग. सो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दो, अगर बोलना हो कि स्टेटमेंट एक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगी? ये कोई ऐसी चीज होगी जो कि बिल्कुल उसकी उल्टी होगी. अगर स्टेटमेंट ए कह रहा है कि लेट्स से सूरज ईस्ट से उगता है, तो स्टेटमेंट बी ऐसी होगी जो कहेगा सूरज ईस्ट से नहीं उगता, या मतलब ये डिस्प्रूव कर रहा होगा बात कि सूरज ईस्ट से उगता है. सो दैट विल बी अ परफेक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, नथिंग एल्स. कि हमें जो स्टेटमेंट दी है उसका एग्जैक्ट उल्टा क्या होगा, या उस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली अंडरमाइन क्या करेगा, एग्जैक्ट उल्टा जिसको बोलते हैं, सो टू से. Okay, so here then I've written something. There may be two sentences contradictory to what is mentioned in the passage, but we must only mark the option that will directly negate what is mentioned in the question. Same thing, and this is a very, very common RC trap. Going ahead, मैंने मेरी स्टडी में क्या फाइंड आउट करा, आई जस्ट फिनिश टीचिंग अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स. एक्चुअली रिसेंटली आई फिनिश टीचिंग माय फर्स्ट बैच. सो उनको भी मैं यही बता रही थी कि आरसी ट्रैप्स, मतलब एग्जामिनर के पास ना गिने चुने ट्रैप्स होते हैं वीआरसी में, आरसी क्वेश्चंस के लिए, जो कि एग्जामिनर्स बार बार रिपीट करते हैं. सो इफ यू वुड वांट मी टू डू अ सेपरेट सेशन अबाउट इट, अबाउट आरसी ट्रैप्स, just let me know in the comments. Okay, now here is another pro tip from me, that after you mark an option, just quickly double check. एक बारी क्वेश्चन देख लो कि हाँ मैंने आंसर ऑप्शन सी मार्क कर दिया. जस्ट टेक अ सेकंड टू ग्लांस एट द क्वेश्चन एंड सी कि यार क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो ऑप्शन सी एग्जैक्टली आंसर कर रहा है ना? हाँ कर रहा है, चलो लेट्स मूव अहेड. बिकॉज कई बारी ऐसा हो सकता है कि आपने जो मार्क कर दिया विच इज करेक्ट पर से, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन. जो चीज मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर होगा. So here then given some examples. अगर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि what is the fundamental argument of the author? Fundamental argument is again something like the main idea. और दो ऑप्शंस है जो कि दोनों ही अग्रीमेंट में है पैसेज के साथ, और आप कंफ्यूज हो कि दोनों ही ऑथर का आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं. पर आप क्लोजली एग्जामिन जब करोगे, आपको दिखेगा एक ही ऑप्शन है जो आपको फंडामेंटल आइडिया, यानी कि जो ऑथर बार बार कहने की कोशिश कर रहा है, वो एक ही ऑप्शन में है. तो वो ऑप्शन इज आंसरिंग अ क्वेश्चन. So that's how you eliminate between two options. Like, again, this is a very common RC trap. कि which of the following is a valid inference? Inference is something which is not directly
clearly stated in the passage. तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको दो ऑप्शंस दे देगा, ठीक है, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा, दोनों ही ऑप्शंस आपको देखने में सही लगेंगे, पर जब आप क्लियरली देखोगे तो आपको दिखेगा इनमें से एक कंक्लूजन है और एक ऑप्शन तो बस एक ऑब्जर्वेशन है, जो लिखा था उठा के रख दिया. एन ऑब्जर्वेशन कांट बी एन इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ. तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखना, बहुत कॉमन ट्रैप है ये. ओके, फिर हेस्टी जनरलाइजेशंस. अगेन दिस इज सच अ कॉमन ट्रैप और इसमें हमेशा बच्चे बार 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 फंसते हैं. तो हेस्टी जनरलाइजेशन क्या होती है, मैंने लेट्स से पैसेज में इंडिया से रिलेटेड कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, और जब मैं नीचे ऑप्शन क्राफ्ट कर रही थी तो वो मैंने पूरी दुनिया के लिए जनरलाइज कर दिया, ठीक है. ऑलवेज, फुली, सोली, कंप्लीटली, ओनली, नन, एवरीवन, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं बोल्ड में. मेक श्योर कि आप ऐसे देखो, बहुत केयरफुली एग्जामिन करो ऑप्शन. सारा ऑप्शन सही हो सकता है पर उसमें एक ओनली वर्ड से ना वो ऑप्शन पूरा गलत हो जाता है, बिकॉज फिर वो स्कोप चेंज कर रहा है पैसेज का. हमें फैक्ट्स जिस स्कोप में दिए गए हैं पैसेज में, उसी स्कोप में आंसर करना है. हम ना उनको एग्जैजरेट कर सकते हैं, ठीक है, एग्जैजरेट नहीं कर सकते हम उन फैक्ट्स को. फिर एक क्या होता है, अट्रैक्टिव वर्ड ट्रैप. जैसे अगर कोई ऑप्शन इतना लंबा है लेट्स से, उसमें से 3-4 words they'll pick very very similar words to what was mentioned in the RC, right, and they'll put it in the option. बट वंस यू एग्जामिन द एंटायर ऑप्शन यू विल सी कि भाई इसके 3-4 वर्ड्स तो मैच कर रहे थे, बट जो सेकंड पार्ट ऑफ द ऑप्शन है दैट इज, उसमें कुछ ऐसा है जो इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बना रहा है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू एग्जामिन द एंटायर ऑप्शन, एक एक वर्ड अच्छे से एक बार ही देख लो कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहा है. फिर कोई क्वेश्चंस अगर ऐसे होते हैं जिनमें इन कोट्स दिया होता है एंड दे आस्क की दीज दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट इज और दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस इज यूज टू आर्ग्यू दैट क्वेश्चन मार्क ऐसे लिखा हो, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हो, बेस्ट होता है कि ये कोट्स में जो दी हुई है लाइन, इसके 2-3 लाइन ऊपर और 2-3 लाइन नीचे आप रीड करो उसके साथ, लाइक सेंटेंस के साथ, एंड दैट हेल्प्स यू रीच द करेक्ट आंसर. Now, CAT 22 and CAT 23 were dominated by double negative questions. Double negative क्या होता है? None can be inferred except, or all of the following if true do not support the passage except, और all of the following if false support the passage except, या वो ऐसे भी बोल सकता है all of the following if false do not support the passage except. तो मेरी इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एक ट्रिक होती है, वो मैं अभी शेयर करूंगी आगे एज वी मूव अहेड एंड एज वी एनकाउंटर दीज क्वेश्चंस मोर एंड मोर इन आवर कोर्स. सो कीप अ वेरी वेरी वाइड आई फॉर दीज वर्ड्स, नन, एक्सेप्ट. ये मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स दे गिव एन आंसर वेरी कॉन्फिडेंटली, देन ऐसे अच्छा तो पैसेज को सपोर्ट कर रहा है, एक बार ही क्वेश्चन पढ़ना, देन दिस अरे अरे मैम एक्सेप्ट लिखा था इसमें, सॉरी सॉरी हमसे मिस हो गया, विच इज अ वेरी जेन्युइन मिस्टेक. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट मेक श्योर कि आप ध्यान से एक बार ही क्वेश्चन को देखो. Okay. So, last tip, after this we move on to our first RC. Read slowly. ये कोई और टीचर भी यूट्यूब पे एक बारी बोल रहे थे, रीड स्लोली टू स्कोर बेटर, टू अंडरस्टैंड बेटर. राइट, रशिंग थ्रू द आरसी, जल्दी 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 मैं ये भी कर लूँ, पढ़ भी लूंगा मैं, जल्दी 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 क्वेश्चंस भी आंसर कर दूंगा, समझ कुछ आया नहीं. तो जब तक आपको समझ नहीं आ रहा है आपके कोई क्वेश्चंस आंसर नहीं होंगे. ठीक है, आप 2-1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो रीड करने में, क्योंकि एक्यूरेसी तो आनी चाहिए. So read a little slow if you have to, but understand the passage, right? There are no shortcuts. थोड़ा अगर स्लोली पढ़ोगे तो एक्यूरेसी अगर उससे बढ़ती है तो भैया स्लोली पढ़ लो, मच बेटर, rather than attempting more questions and getting all of them right. Okay, one last thing, focus always in VRC has to be on accuracy first and foremost. Accuracy is always greater than the number of attempts. आई थिंक ये मैंने श्वेता अरोड़ा की वीडियो में भी देखा था, शी वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग. एंड जनरली नाउ दैट आई हैव बीन मेंटरिंग किड्स, तो मैं उनको बोलती हूँ जिनको भी प्रॉब्लम आ रही होती है, दैट यू फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर द नंबर अटेम्प्ट्स एंड देन यू कम बैक टू मी एंड यू टेल मी, एंड दे ऑलमोस्ट ऑलवेज कम बैक विद पॉजिटिव रिजल्ट्स. और अभी तो तुम लोग मतलब जैसे मैं तो एक अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, राइट, आई हैव अ सर्टेन स्कोर, तो आई कैन स्टिल फोकस ऑन इम्प्रूविंग माई अटेम्प्ट्स. बट एक्यूरेसी पे फोकस इनिशियल स्टेजेस में और मिड स्टेजेस में तो डेफिनेटली होना चाहिए. एक बार ही तुम अपनी स्कोर रेंज वो कर लो स्टेबलाइज, आफ्टर दैट ग्रेजुअली अटेम्प्ट्स बढ़ने लगते हैं, तुम्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, पर एक्यूरेसी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. Okay, so we'll start with the previous year question. This is an RC from 2023, second slot say RC. Okay, so you guys can just pause the video here and read this RC इतना, या फिर आप screenshot भी ले सकते हो जैसे भी. I'll share the second part of this as well. Again, you can pause the video or you can take a screenshot and read it, however it suits you.
यहाँ तक है यार सी. So pause the video, read it, take some time, and then we'll read it together. I'll just have a sip of water till then. Guys, I'm down with a very bad cold this September and like all of August. So I'm sorry if my voice is a little unclear. I hope it's not though. Okay, so let's read the passage together. The second-hand September campaign, led by Oxfam, seeks to encourage shopping at local organizations and charities as alternatives to fast fashion brands such as Primark and Boohoo in the name of saving our planet. तो जब मैं ये देख रही हूँ तो इन द नेम ऑफ सेविंग आवर प्लैनेट मुझे दिख रहा है तो ऑथर थोड़ा सा मुझे थोड़ा सार्कास्टिक लग रहा है, थोड़ा इतना कन्विंस नहीं लग रहा है, एज आई एम रीडिंग दिस. लेट्स सी गोइंग अहेड. As innocent as mindless scrolling through online shops may seem, such consumers are unintentionally or perhaps even knowingly contributing to an industry that uses more energy than aviation. So the author is not seeming very convinced by what these people are doing. He's seeming a little salty because he's saying या तो ये लोग जानते नहीं है या जानते हुए भी ये लोग ये कर रहे हैं. एक बारी देखते हैं जिस्ट क्या हुई फर्स्ट पैराग्राफ की. तो ये हमको बता रहे हैं कि कोई सेकेंड हाथ सितंबर कैंपेन है जो कि एनकरेज कर रहा है कि आप लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज पे शॉप करो रादर देन फास्ट फैशन ब्रांड्स जैसे कि प्राइमार्क और बूहू. ओके, सो दिस इज द कोर थिंग. एंड ऑथर इज सेइंग कि कह रहे हैं इन द नेम ऑफ सेविंग आवर प्लैनेट्स. ठीक है. So then he's saying कि I don't know if it is unintentional or even knowingly that they're contributing to an industry which is consuming so much energy, right? Just like aviation. आगे देखते हैं. Brits buy more garments than any other country in Europe, so it comes as no shock that many of those clothes end up in UK landfills each year. 300,000 tons of them to be exact. This waste of clothing is destructive to our planet, releasing greenhouse gases as clothes are burnt as well as bleeding toxins and dyes into the surrounding soil and water. As ecologist Chelsea Rochman bluntly put it, the mismanagement of our waste has even come back to haunt us on our dinner plate. Hmm. सो व्हाट इज द ऑथर टेलिंग अस कि ब्रिटेन में एक ओवर कंजम्पशन की प्रॉब्लम है. डेफिनेटली ब्रिटेन के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा गारमेंट्स खरीदते हैं और किसी कंट्री के कंपैरिजन में. तो ये कोई शौक की बात नहीं है कि इतने सारे जो कपड़े होते हैं दे एंड अप इन लैंडफिल्स ईच ईयर. उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा नंबर भी दिया है और ये कह रहे हैं कपड़ों का जो वेस्ट है ये प्लानट के लिए बहुत हार्मफुल है. इन्होंने तरीके भी बताए कैसे हार्मफुल है. ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, टॉक्सिन्स और डाइज जो है इनको ब्लीड करता है इन द एनवायरमेंट एंड द सॉइल एंड वाटर. एंड देन सम इकोलॉजिस्ट has gone to the extent of saying कि ये जो हमारी मिसमैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, इट इज इवन हॉन्टिंग अस नाउ ऑन आवर डिनर प्लेट्स. Then they're saying it's not surprising then that people are scrambling for a solution. Scrambling का मतलब क्या होता है कि लोग बहुत desperate है एक solution ढूंढने के लिए. ठीक है, they're looking for a solution. The most common of which is second hand shopping. Okay, so second hand shopping यहाँ पे इन्होंने किस चीज की तरह ढूंढना है? एक solution के लिए. किस चीज का solution? ये जो mismanagement of waste है, ये जो over consumption की दिक्कत हमको दिख रही है, इससे डील करने के लिए. Retailers selling consigned clothing are currently expanding at a rapid rate. If everyone bought just one used item in a year, it would save 449 million pounds of waste, equivalent to the weight of 1 million polar bears. Thrifting has increasingly become a trendy practice. London is home to many second-hand or more commonly coined vintage shops across the city from Bayswater to Brixton. तो यहाँ ये बस ये बता रहे हैं कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है उसकी वजह से लोग एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. सोल्यूशन के लिए उन्होंने क्या ढूंढा है? सेकंड हैंड कपड़ों को खरीदना. ठीक है, ये इन्होंने सोल्यूशन ढूंढा और ये ग्रो भी कर रहा है काफी रैपिड रेट पर. थ्रिफ्टिंग वर्ड हम सबने जो सुना है, सब लड़कियों का आजकल थ्रिफ्ट स्टोर होता है इंस्टाग्राम पे. सो थ्रिफ्टिंग हैज इंक्रीजिंगली बिकम अ ट्रेंडी प्रैक्टिस, काफी ट्रेंडी प्रैक्टिस बन गई है. सो लेट्स सी आगे क्या बोल रहा है. सो you're cool and you care about the planet. You've killed two birds with one stone. But do people simply purchase a second-hand item, flash it on Instagram with hashtag vintage, and call it a day without considering whether what they're doing is actually effective? So the author is posing a very important question here. He's saying तुम्हें ये लग रहा है कि तुम बहुत कूल भी हो, तुम प्लैनेट के बारे में चिंता भी करते हो, तुम्हारा सारा काम बन गया, ठीक है. बट ही सेइंग कि क्या लोग बस एक सेकंड हैंड आइटम लेते हैं, उसको बस इंस्टाग्राम पे दिखा देते हैं हैशटैग विंटेज डाल के, एंड दैट्स अबाउट इट. या वो कभी बैठ के सोचते भी है कि यार हम जो कर रहे हैं इज दैट इवन इफेक्टिव इन द फर्स्ट प्लेस? According to a study commissioned by Patagonia, for instance,
Older clothes, they shed more microfibers. Okay, this is where it gets interesting because still here, like ये author की एक जो salty tone थी जो मुझे यहाँ पे दिख रही थी, जो ये बोल रहे थे in the name of saving our planet, ठीक है, unintentionally या perhaps even knowingly. So we could say that the author is not very convinced. But then they gave us data point. They said कि 1 million polar bears जितना ये waste जो है इसको हम बचा सकते हैं. अभी तक ये हमें ये डेटा दे रहे थे, अब कोई और alternate डेटा दे रहे हैं. सो लेट्स सी क्या बता रहे हैं. ये कह रहे हैं older clothes they actually shed more microfibers. These can end up in our rivers and seas after just one wash due to the worn material, thus contributing to microfiber pollution. To break it down, the amount of microfibers which are released by laundering 100,000 fleece jackets is equivalent to as many as 11,900 plastic grocery bags, and up to 40% of that ends up in our oceans. So, where does this leave second-hand consumers? सो देन अगेन द ऑथर ने अब ये हमको बता रहे हैं कि यार एक रीसेंट स्टडी जो हुई है इन्होंने तो ये बताया कि ये जो पुराने कपड़े होते हैं एसेंशियली सेकेंड हैंड शॉपिंग में हम पुराने कपड़े खरीद के जो पहन रहे हैं ये तो और ज्यादा माइक्रोफाइबर शेड करते हैं और इससे और ज्यादा माइक्रोफाइबर पोल्यूशन हो रहा है. तो ऑथर यहाँ बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है कि वेयर डज दिस लीव सेकेंड हैंड कस्टमर्स. They would well be advised to buy high quality items that shed less and last longer, as this combats both microfiber pollution and excess garments ending up in landfills. तो ऑथर ने तो भैया बहुत क्लियरली अपनी एडवाइजरी दे दी है कि हाई क्वालिटी आइटम्स लो जिनसे कम माइक्रोफाइबर शेड होता है और जिनकी लाइफ भी लंबी होती है. इससे दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, माइक्रोफाइबर पोल्यूशन की भी और एक्सेस गार्मेंट्स ये जो लैंडफिल्स में आ रहे हैं. Luxury brands would rather not circulate their latest season stock around the globe to be sold at a cheaper price, which is why companies like Thread UP, a US fashion resale marketplace, have not yet caught on in the UK. तो ये क्या कह रहे हैं कि लग्जरी ब्रांड्स जो है दे वुड मच रादर नॉट सर्कुलेट द लेटेस्ट सीजन स्टॉक अराउंड द ग्लोब टू बी सोल्ड एट अ चीपर प्राइस. ओके ओके. There will always be a market for consignment, but there is also a whole generation of people who've been taught that only buying new products is the norm, and second-hand luxury goods तो उनकी साइकी में ही नहीं है. This makes a very good point if you think about it. तो एक दो जन मतलब हमारी नानी या हमारे पेरेंट्स अगर हम उनको बताएंगे भी कि सेकेंड हैंड शॉपिंग का ये फायदा है वो फायदा है, वो लेंगे. फॉर देम इट्स जस्ट द न्यू प्रोडक्ट्स, राइट, कि हम किसी का पहना हुआ क्यों उतारा हुआ क्यों पहने जिसको बोलते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ देयर साइकी. Ben Whittaker, director at liquidation firm B Stock, told Prospect that unless recycling becomes cost effective and filters into mass production with the right technology to partner it, high end retailers would rather put their brand before sustainability. उन्होंने बहुत क्लियरली इसने एक बता दिया है, कहीं का डायरेक्टर है ये, इसने क्या बताया कि या तो रिसाइकलिंग कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, ठीक है, और मास प्रोड्यूस भी कर पाए, मतलब कि ब्रांड्स के लिए भी कन्वीनियंट हो जाए एक तरीके से और सही टेक्नोलॉजी आ जाए, तब तो ये लोग करेंगे. वरना जो हाई एंड रिटेलर्स है दे वुड मच रादर पुट द ब्रांड बिफोर सस्टेनेबिलिटी. सो वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ इन द स्टार्टिंग. दे टोल्ड अस कि एक सेकंड हैंड सितंबर कैंपेन है जो कि चल रहा है, ठीक है, लोगों को एनकरेज करने के लिए सेकंड हैंड शॉपिंग और सबके लिए और फास्ट फैशन से ना खरीदने के लिए. ऑथर यहाँ पे हमें थोड़ा सॉल्टी दिख रहा था. फिर उन्होंने हमें पूरी प्रॉब्लम बताई कि ब्रिटेन में लोग कितने ज्यादा कपड़े खरीदते हैं जिसकी वजह से कितना ज्यादा पोल्यूशन ईयर ऑन ईयर हमको दिखता है, राइट. एंड देन दे टोल्ड अस कि सेकेंड हैंड शॉपिंग एक चीज है जो कि लोगों ने ढूंढी एज एन ऑल्टरनेटिव या जो भी. देन आफ्टर दैट उन्होंने हमको एक दूसरी स्टडी दे दी जो कि कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, राइट, वो डेटा को जो पहले दिया था कि सेकेंड हैंड शॉपिंग इज गुड. इन्होंने एक तरीके से बता दिया इसके अपनी हानिकारक चीजें हैं, सो टू से. एंड देन दे टोल्ड अस अबाउट लग्जरी ब्रांड्स कि दे वुड मच रादर नॉट recycle. For them, their brand will always come before sustainability. सो आई होप कि जब आपने पैसेज पढ़ा और जब मैंने पैसेज पढ़ा, आई होप कि एक तो या तो आपको इनिशियली खुद समझ आ गया हो या नहीं तो बेटर समझ में आया हो. इसलिए मैं बोलती हूँ कि धीरे और ध्यान से पढ़ के मुझे पैसेज बहुत लूसिडली समझ में आ गया है, मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है. सो आई बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बेटर. Let's take a look at question number one. The central idea of the passage would be undermined. So this is a two-part question. Okay. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिखते हैं. सिर्फ आपको ये नहीं देखता कि पैसेज का डेटा किस चीज से अंडरमाइन होगा, आपको ये देखना है कि जो सेंट्रल आइडिया है वो किस चीज से अंडरमाइन होगा. सेंट्रल आइडिया क्या होता है, जो ऑथर आपको बार 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 बताने की कोशिश कर रहा होता है. सो टेक सम टाइम विद दिस क्वेश्चन. यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड टेक सम टाइम एंड वील डिस्कस इट देन.
Okay, I hope you have an answer by now. So let's look at this. The central idea of the passage would be undermined if number one, Primark and Boohoo recycled their clothes from vintage stores. Number two, customers bought all their clothes online. Number three, second-hand stores sold only high-quality clothes. And number four, clothes were not thrown and burned in landfills. I think B can be straight away eliminated because online offline की passage में इतनी कोई चर्चा नहीं हुई है, right? अगर हम सेंट्रल, अच्छा अभी इस पे आते हैं, चलो अगर ऑप्शन ए की बात करें, प्राइमार्क एंड बूहू रिसाइकल देयर क्लोथ्स फॉर विंटेज स्टोर्स। अभी सेंट्रल आइडिया की जो बात हुई है, इतना फास्ट फैशन पे पर से एम्फेसिस नहीं है, राइट? ऑथर का एम्फेसिस हमको और चीजों पे दिख रहा है, तो ए कैन बी एलिमिनेटेड एज वेल, इट डज नॉट मेक दैट मच सेंस। अगर हम सी और डी की बात करें, आई थिंक दिस इज वेयर द कंफ्यूजन शुड लाई। ओके, एंड राइटली सो। लेट्स लुक एट ऑप्शन डी, clothes were not thrown and burnt in landfills. सो इन अ वे, अगर ये सच हुआ तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें ऐसी फील आ सकती है कि हाँ, ऑथर की बात जो है, पैसेज की जो बात है, वो अंडरमाइन होगी। अगर लोग अपने कपड़े फेंक नहीं रहे हैं, जला नहीं रहे हैं, तो उससे इतना माइक्रोफाइबर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, उससे ये टॉक्सिन्स भी ब्लीड नहीं हो रहे हैं, राइट? सो कहीं ना कहीं एक ऑथर ने जो डेटा दिया था उससे थोड़ा हमको उल्टा दिख रहा है। और ऑप्शन सी, सेकेंड हैंड स्टोर सोल्ड ओनली हाई क्वालिटी क्लोथ्स, तो ये भी थोड़ा उल्टा दिख रहा है। अगर सेकेंड हैंड स्टोर्स हाई क्वालिटी कपड़े बेचेंगे तो उससे फिर माइक्रोफाइबर पोल्यूशन और ये सब नहीं होगा, राइट? सो बिटवीन सी एंड डी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज सीइंग कि सेंट्रल आइडिया को कौन सा अंडरमाइन कर रहा है। सेंट्रल आइडिया क्या होता है? जो ऑथर बार 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 आपको बताने की कोशिश कर रहा हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो स्टार्टिंग से ऑथर एक चीज के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड हैंड सितंबर कैंपेन, राइट? सेकेंड हैंड शॉपिंग, थ्रिफ्टिंग, सेकेंड हैंड शॉपिंग, कि मैं तो इन लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि भैया तुम लोग खरीद लो हाई क्वालिटी आइटम्स विच शेड लेस एंड लास्ट लॉन्गर। किसको एडवाइस करें? सेकेंड हैंड शॉपिंग। तो यहाँ सेकेंड हैंड शॉपिंग का मुझे जिक्र दिखा, यहाँ मुझे जिक्र दिखा कि इन्होंने एज अ सोल्यूशन इसको ढूंढा, यहाँ मुझे जिक्र दिख रहा है हाई क्वालिटी आइटम्स खरीद लो आप, सेकेंड हैंड शॉपिंग छोड़ दो। तो बार 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 ऑथर का एम्फेसिस इज ऑन सेकेंड हैंड शॉपिंग। सो सी विल बी आवर आंसर, बिकॉज एक तरीके से सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है? ऑथर हमें ये बता रहा है कि सेकेंड हैंड स्टोर्स जो है, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू मोर एंड मोर पोल्यूशन, राइट, in the society, which that is what author has told us and has been talking about second-hand shopping repeatedly. So C perfectly undermines the central idea of the passage, as the central idea of the passage is that second-hand stores, they're actually contributing more to pollution. That is what we can conclude. और central idea क्यों? क्योंकि बार बार ऑथर बता रहा था। तो अगर ये सिर्फ हाई क्वालिटी कपड़े बेचे, सो द आइडिया विल बी अंडरमाइंड। आई थिंक इट स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर अ सेकेंड, सो जस्ट टू सम इट अप, ऑप्शन सी और डी दोनों ही एक तरीके से पैसेज के आर्ग्यूमेंट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। पर सी हमारे सेंट्रल आइडिया को अंडरमाइन कर रहा है, क्योंकि पैसेज का सेंट्रल आइडिया बार बार इज अराउंड सेकेंड हैंड शॉपिंग और उसकी जो इम्प्लीकेशन होती है। ऑप्शन डी, इफ क्लोथ्स वर नॉट थ्रोन एंड बर्न्ड इन लैंडफिल्स, तो उससे पोल्यूशन रुक जाएगा। पर हमारे ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट जो है कि सेकेंड हैंड शॉपिंग से एक्चुअली खराब इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो काउंटर नहीं होगा। So C is our answer. It's answering our question very well and it's undermining the central idea. Then let's look at question number two. You can pause the video, take a little bit of time with question number two, and we'll discuss it then. Okay. So, the act of thrifting, as described in the passage, can be considered ironic because it has created environmental problems, is an anti-consumerist attitude, is not cost-effective for retailers, offers luxury clothing at cut rate prices. Sorry. तो जब भी थ्रिफ्टिंग या कोई चीज ऐसे कोट्स में दी हुई है, तो एक बार ही जरा देखते हैं ये कोट्स जो लिखे हैं, ये कहाँ पे मेंशन था थ्रिफ्टिंग। यहाँ पे भी कोट्स में दिया हुआ है, देखते हैं जरा क्या बता रहे हैं ये। अगर हम इस पैराग्राफ के एक बार जस्ट देखें, इट्स नॉट सरप्राइजिंग देन दैट पीपल आर स्क्रैम्बलिंग फॉर अ सोल्यूशन। किस चीज का सोल्यूशन था ये? पोल्यूशन और इस सब का सोल्यूशन, राइट? द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज सेकेंड हैंड शॉपिंग। रिटेलर्स सेलिंग consigned clothing, they are currently expanding at a rapid rate. If everyone bought just one used item in a year, it would save itna falana waste equivalent to the weight of 1 million polar bears. Thrifting has increasingly become a trendy practice. London is home to many second-hand or more commonly coined vintage shops across the city. ठीक है। तो ये सब इन्होंने बताया कि लोग एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जो सोल्यूशन उन्होंने क्या ढूंढा? सेकेंड हैंड शॉपिंग काइंड ऑफ, सो टू से। थ्रिफ्टिंग एक बहुत ट्रेंडी प्रैक्टिस बन गया। So, the act of thrifting, as described in the passage, can be considered ironic because I think B can be eliminated straight away. Anti-consumerist attitude, ऐसी कोई बात नहीं हुई है।
is not cost effective for retailers, offers luxury clothing at cut rate pieces. When we look at option number A, has created environmental problems. आयरनी क्या होती है? किसी चीज को हम आयरनी बोलते हैं जब हमने लेट्स से किसी इंटेंशन से इंट्रोड्यूस करी और उसका उल्टा ही हो गया, देन आई से हाउ आयरॉनिकल, राइट? Like the new scheme to protect women after the let's say the Kolkata incident is कि women पे और restrictions लगा दो, so ironic, rather than actually taking some actual measures. So when we look at it like this, irony, ironic क्यों इसको माना जा सकता है? और जब हम अपने keywords भी मैच करें तो इस पूरे पैसेज में इन्होंने हमें ये बताया कि सेकेंड हैंड शॉपिंग क्यों आई थी। लोग, पीपल वर स्क्रैम्बलिंग फॉर अ सोल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, राइट? जो पहले इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब करी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसके एक सोल्यूशन के लिए लोग बहुत डेस्परेटली एक सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। क्या सोल्यूशन उन्होंने ढूंढा? सेकेंड हैंड शॉपिंग और थ्रिफ्टिंग, वहां से ये वर्ड निकल के आया। सो ऑप्शन नंबर ए हैज क्रिएटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, की कोई ऐसी चीज जिसकी इंटेंशन थी टू reduce environmental problems, it actually ended up creating even more environmental problems, right? So that is the irony over there. So option A is the clear answer over here. Let's look at question number 3. So pause the video, try the question and we'll discuss. और ट्राई करना क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये मत सोचो कि मैं ही बता दूंगी आंसर, तुमको क्यों ट्राई करना है। क्योंकि तुम ट्राई करोगे, तुमसे अगर कोई गलती होगी, राइट, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर टू नॉट मेक दैट सेम मिस्टेक अगेन। अपनी मेंटल मसल बिल्ड करनी है यहाँ पे। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई क्वेश्चन 3. Guys, I live in Kasoli and there are so many monkeys here, just so many monkeys. I can look at them from right outside my window and I'm very scared of them. Okay, question 3. Based on the passage, we can infer that the opposite of fast fashion, slow fashion, would most likely refer to A. Clothes that do not shed microfibers. B. Are of high quality and long lasting. C. Are sold by genuine vintage stores. D. Do not bleed toxins and dyes. फास्ट फैशन, जो इन्होंने लिखा था कि फास्ट स्टार्टिंग में प्राइमार्क और बूबू फास्ट फैशन ऐसे जो ब्रांड्स हैं इनसे मत शॉप करो, ठीक है? क्यों इन्होंने ये ऑल्टरनेटिव बताए थे? कि इन द नेम ऑफ सेविंग आवर प्लैनेट, राइट? कहने का मतलब है कि ये जो फास्ट फैशन ब्रांड्स है, दे आर बैड फॉर द प्लैनेट एंड दे आर बैड फॉर द एनवायरनमेंट। सो टू से फास्ट फैशन होता क्या है? जो इतने एनवायरमेंटली कॉन्शियस ब्रांड्स नहीं होते हैं, जल्दी 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 दे कीप पुशिंग आउट न्यू डिजाइन एवरी डे, ट्रेंडी डिजाइन्स, राइट? अपनी सेल्स वगैरह बढ़ाने बढ़ाने के लिए, और उनकी प्रैक्टिसेस भी सस्टेनेबल नहीं होती है। H&M इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग फास्ट फैशन ब्रांड in our country. I think they took over Zara as well recently. I'm not very sure. I think so. So ये देखते हैं अभी ये क्या बोल रहे हैं। Opposite of fast fashion क्या होगा? A. Do not shed microfibers. Okay. B. Are of high quality and long lasting. Maybe. C. Are sold by genuine vintage stores. दिस मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर। विंटेज स्टोर्स और उसका कुछ लेना देना नहीं है जेन्युइन और इसका स्लो और फास्ट फैशन से। डी. डू नॉट ब्लीड टॉक्सिन्स एंड डाइज। सो अगर हम ए, बी और सी ऑप्शंस में से देखें तो फास्ट फैशन एसेंशली क्या करता है? हमारे लिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, राइट? फास्ट फैशन के जो कपड़े होते हैं, तो स्लो फैशन के कपड़े वो होंगे जो हमारे लिए नहीं क्रिएट करेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो एक तरीके से ऐसे कपड़े जो कि माइक्रोफाइबर शेड ना करे या फिर टॉक्सिन्स और डायज ब्लीड ना करे, दिस ऑल्सो मेक सेंस। बट एक बार अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसने क्लियरली, ऑथर ने हमको बता रखा है, सी लुक एट वेयर द कर्सर इज, second-hand shoppers, they would well be advised to buy high-quality items that shed less and last longer, thus combating both microfiber pollution and excess garments. तो ये जो हाई क्वालिटी आइटम्स हैं, ठीक है, विच शेड लेस सॉरी एंड लास्ट लॉन्गर, ये हमारी माइक्रोफाइबर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं और जो एक्सेसिव कपड़े भरे जा रहे हैं लैंडफिल्स में, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हैं। ऑथर ने ये बहुत क्लियरली लिखा है। सो देन व्हेन आई लुक एट दिस, ऑप्शन नंबर बी जो है ये ऑप्शन, इट टेक्स केयर ऑफ ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी एज वेल। इट इज मच ब्रॉडर कि हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि जब कपड़े हाई क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ऑटोमेटिकली माइक्रोफाइबर्स नहीं शेड करेंगे, ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स और डाइज इतने नहीं ब्लीड करेंगे, लैंडफिल्स में नहीं आएंगे। सो बी विल बी आवर आंसर बिकॉज इट इज द ब्रॉडर ऑप्शन। इफ वी सेलेक्ट बी, ए एंड डी आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। और फास्ट फैशन कपड़े क्या होते हैं? वही लॉन्ग लास्टिंग, या दे लीड टू मोर एंड मोर पोल्यूशन। सो हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग क्लोथ्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बोथ माइक्रोफाइबर भी और टॉक्सिडर्ड है। ये हमारा ब्रॉडर ऑप्शन है, क्लियरली ऑथर ने लिखा भी था, मैंने अभी दिखा दिया। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, ट्राई क्वेश्चन 4, इट्स एन इजी वन बट ध्यान से करना।
pause the video, try the question, you know the drill, and we'll discuss it. Okay, let's discuss this. According to the author, companies like, one second. Hmm. According to the author, companies like ThreadUP have not caught on in the UK for all of the following reasons, except recycling is currently not financially attractive for luxury brands. B. Luxury brands do not like their product to be devalued. C. The British don't buy second-hand clothing. D. Luxury brands, they want to maintain their image. तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो थ्रेड यूपी टाइप की कंपनीज हैं इन्होंने अभी तक यूके में नहीं कैचअप करा है फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट आई थिंक थ्रेड यूपी यहाँ कहीं लिखा हुआ था luxury brands would rather not circulate their latest season stock around the globe to be sold at cheaper price, which is why companies like ThreadUP, a US fashion resale marketplace, okay, resale marketplace है, have not yet caught on in the UK. फिर आगे इन्होंने बताया है इस सब के बारे में. So when we look at this question, key all of the reasons except A. Recycling is currently not financially attractive for luxury brands. Clearly लिखा हुआ था यहाँ पे कि unless वो cost effective और high scale तरीके से करें mass production cost effective तब तक ये retailers अपने brand को रखेंगे आगे sustainability के right. Luxury brands want to maintain their image. Again यहाँ पे भी लिखा है अपने brand को आगे रखेंगे before sustainability and they would much rather they would not circulate their stock around to be sold at a cheaper price right. सो बी ये यहाँ से आ जाता है दे डोंट लाइक द प्रोडक्ट बीइंग डीवैल्यूड कि ये अपने उसको सस्ते दामों पर ऐसे पूरी दुनिया में सर्कुलेट करके नहीं बेचेंगे. रही बात सी की द ब्रिटिश डोंट बाय सेकंड हैंड क्लोथिंग. सो दिस इज द ऑड वन आउट. ए बी और डी के लिए हमारे पास क्लियर डेटा पॉइंट है बट सी तो हमारे पूरे पैसेज के ही अगेंस्ट है. पूरे पैसेज में ये बात हुई है कि कैसे एक सेकंड हैंड शॉपिंग का कैंपेन शुरू हुआ, कैसे लोग ज्यादा ज्यादा सेकंड हैंड शॉपिंग कर रहे हैं. तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई. द ब्रिटिश डोंट बाय सेकंड हैंड क्लोथिंग. सो सी विल बी आवर आंसर हियर. फॉर ए बी एंड डी वी कैन फाइंड क्लियर डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ. C is the odd one out, and it is any which ways um the answer. So this is again, I think this is from Cat 22. Sorry, Cat 23 only. I forgot to write, but it's a very interesting passage. So you can pause the screen, read this much, or take screenshots as you please. तो ये हो गया इसका. Now I'm gonna move it to the next slide. And the third slide now. So you can pause the screen, take some time, okay? Read the passage nicely, don't rush through, and then we'll discuss. It started raining also now here. Guys, do you like the rain? I personally love the rain. Let me know in the comments. I don't know if you can hear it though. ठीक है, अब एक बार ही रीड करते हैं पैसेज. Okay. Again, a PYQ passage. Great passage, great questions. Let's take a look at it. Umberto Eco. जो भी pronunciation है इसके नाम की. Forgive me for butchering the pronunciation. An Italian writer was right when he said that the language of Europe is translation. Netflix. Another deep pocketed. Deep pocketed क्या होता है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिसकी जेबें बहुत गहरी होती है, जिसके पास पैसा बहुत होता है, राइट? सो डीप पॉकेटेड ग्लोबल फर्म्स दे स्पीक इट वेल. सो ये क्या कह रहे हैं कि कोई इटालियन राइटर है जिसने कहा है कि यूरोप की जो भाषा है वो ट्रांसलेशन की भाषा है. नेटफ्लिक्स और कई सारे बहुत सारे पैसे वाले जो ग्लोबल फर्म्स हैं वो ये भाषा बहुत अच्छे से बोलते हैं ट्रांसलेशन की. Just as the EU employs a small army of translators and interpreters to turn intricate laws on impassioned speeches of Romanian MEPs into the EU's 24 official languages, so do the likes of Netflix. तो ये कह रहे हैं जैसे यूरोपियन यूनियन एक स्मॉल आर्मी ऑफ ट्रांसलेटर्स रखता है इंटरप्रेट करने के लिए, राइट, लॉज को और स्पीचेस को ट्रांसलेट करने के लिए, वैसे ही नेटफ्लिक्स भी रखता है ये आर्मी ऑफ ट्रांसलेटर्स, सो टू से. It now offers dubbing in 34 languages and subtitling in a few more. The economics of European productions, they are more appealing too. Okay. American audience, they're more than willing to give dubbed or subtitled viewing a chance. This means shows like Lupin, a French crime caper on Netflix, can become global hits. In 2015, about 75% of Netflix original content was American. Now the figure is half.
ओके सो 2015 में नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल कंटेंट 75% अमेरिकन था, मतलब वहीं की कंपनी का, वहीं के उसका था। और अब वो फिगर हाफ हो गई है, तो काफी ज्यादा ये लोग अब ग्लोबल प्रोडक्शंस कर रहे हैं, और इनकी सिर्फ अमेरिका वाली कम हो गई है शेयर उसका। Now the figure is half. According to Ampere, a media analysis company, Netflix has about 100 productions underway in Europe, which is more than big public broadcasters in France or Germany. तो ये बता रहे हैं यूरोप में इनकी 100 प्रोडक्शन है, ठीक है, विच इज अ बिग बिग नंबर। सो टिल नाउ देव टोल्ड अस कि कोई टैलेंट राइटर था जिसने कहा था यूरोप की भाषा ट्रांसलेशन की भाषा है। और इस चीज पे पिक ऑन करते हुए, ये बात पे ध्यान देते हुए, नेटफ्लिक्स और जितने पैसे वाले ये बड़े बड़े ग्लोबल फर्म्स हैं, ये इन्होंने ये भाषा बोलनी सीख लिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन में लोग जो होते हैं ये एमपीज और इन सब की मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वगैरह के स्पीचेस ट्रांसलेट करते हैं। नेटफ्लिक्स के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी है ऑफ ट्रांसलेटर्स टू फॉर देयर ग्लोबल प्रोडक्शंस, स्पेशली इन द यूरोपियन यूनियन एरिया। देन अमेरिकन ऑडियंस भी अब काफी विलिंग है इंटरनेशनल शोज देखने के लिए। 2015 से अब तक पहले 75% था ओरिजिनल कंटेंट अमेरिका का, अब वो प्रोडक्शन, अब वो फिगर बिल्कुल हाफ हो गई है। इन्होंने लिखा है कि यूरोप की प्रोडक्शन भी की इकोनॉमिक्स भी ज्यादा अपीलिंग है। सो ये हमें बता रहे हैं कैसे कैसे ये नेटफ्लिक्स और ये सारे जाइंट्स जो है ग्लोबल प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन का एक मेजर रोल है, इकोनॉमिक्स अपीलिंग है। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। Not everything works across borders. Comedy sometimes struggles. Whodunits and bloodthirsty maelstroms between arch Romans and uppity tribesmen have a more universal appeal. अब मैं सच बताऊं तो ना मुझे एग्जैक्टली खुद मेल स्ट्रॉब्स का मतलब पता है, ना एग्जैक्टली हु डन का मतलब पता है। तो कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा यार, किसी को इंग्लिश में हर वर्ड का मतलब नहीं पता हो सकता। कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आपको देख के कॉन्टेक्स्ट में समझ आना चाहिए कि पैसेज आपको क्या बता रहा है, इतना ही जरूरी है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हर चीज नहीं चलती अक्रॉस बॉर्डर्स, कभी कभी कॉमेडी स्ट्रगल करती है। हु डन इट्स एंड ब्लड थर्स्टी, अब ब्लड थर्स्टी से मैं ये समझ सकती हूँ कि वायलेंस की बात हो रही है कुछ। मेल स्टॉर्म्स बिटवीन आर्च रोमन्स एंड अपिटी ट्राइब्समैन, इनकी ज्यादा यूनिवर्सल अपील होती है। तो मैं कह सकती हूँ ये हु डन इट्स आई थिंक मे बी थीव्स और इस सब के लिए यूज होता है, बट ब्लड थर्स्टी डेफिनेटली कुछ सम टाइप ऑफ वायलेंस दे आर रेफरिंग टू बिटवीन ट्राइब्समैन एंड अदर पीपल, आर्च रोमन्स, इन सब के बीच में किसी टाइप की वायलेंस की बात हो रही है। Some do it better than the others. Barbarians aside, German television is not always built for exports. This is a very harsh statement, actually, which the author is making. Barbarians are uncivilized people, so to say. Good to learn new words, जानना सीख पाए कि अनसिविलाइज लोगों को छोड़ के जर्मन टेलीविजन एक्सपोर्ट के लिए नहीं बना है, ठीक है। ये एक एग्जीक्यूटिव ने कहा है, बीइंग पोलाइट। सो देन अगेन दे से कि ये तो मैं पोलाइट होते हुए बोल रहा हूँ कि या तो अनसिविलाइज लोग ही देख सकते हैं, मतलब जर्मन टेलीविजन अपार्ट फ्रॉम जर्मनी वहीं चलेगा। A bigger problem is that national broadcasters are still dominating. Streaming services such as Netflix or Disney Plus, they account for about a third of all viewing hours, even in markets where they are well established. Europe is an aging continent. The generation of teens they staring at their phones is outnumbered by their elders who prefer to gawp at the box. ओके, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यूरोप इज एन एजिंग कॉन्टिनेंट, बूढ़े लोगों की संख्या वहां पे ज्यादा है। तो अभी भी नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस ये सबसे 1/3 ऑफ व्यूइंग आवर्स के लिए अकाउंट कर रहे हैं, विच इज लो। 2/3 इज ट्रेडिशनल टीवी और उस सबको। इन ब्रसल्स इन नेशनल कैपिटल्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ नेटफ्लिक्स एज अ कल्चरल हेजिमन होता है, डोमिनेशन से रिलेटेड वर्ड होता है कि ब्रसल्स और नेशनल कैपिटल में ये जो प्रोस्पेक्ट है कि नेटफ्लिक्स एक कल्चरल हेजिमन या कल्चरली डोमिनेट करेगा, इसे हम एक थ्रेट की तरह देखते हैं। Cultural sovereignty is the watchword of European executives worried that America will eat their lunch. To be fair, Netflix content sometimes seems stuck in an uncanny valley somewhere in the mid-Atlantic with local quirks. क्वर्क्स होते हैं ऐसे छोटी मोटी चीजें, जैसे अगर हम इंडियंस हैं तो ये जो हेड बॉब है हमारा विच इज वेरी फेमस, सो दिस इज अ क्वर्क, इट्स एन इंडियन क्वर्क। ओके, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं विद लोकल क्वर्क्स स्ट्रिप्ड आउट। Netflix originals they tend to have fewer specific cultural references than shows produced by domestic rivals naturally. According to Enders, a market analyst. तो एक बारी यहाँ तक जरा अगर मैं देखूँ तो ये कह रहे हैं कि ये लोग ब्रसल्स और नेशनल कैपिटल में अगर ये सोचे कि नेटफ्लिक्स को एक कल्चरली हमें डोमिनेट करेगा, तो इस चीज को एक थ्रेट की तरह देखा जाता है। Cultural sovereignty is very important for these European executives who are actually really just worried that America will eat their lunch, जैसे इन्होंने लिखा है।
तो ये कह रहे हैं नेटफ्लिक्स कंटेंट, अभी ऑथर का ओपिनियन आ गया, टू बी फेयर ऐसे करके ऑथर बता रहा है कि नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है, कभी कभी लगता है कि वो ऐसे मिड अटलांटिक में ऐसे कहीं फंसा हुआ है, मतलब उसमें वो अंदर से वो लोकल चीज नहीं है, इट्स वो दिखता है कि वो उतना ओरिजिनल नहीं है, उसमें इतनी कल्चरल रेफरेंसेस नहीं होती हैं एज अपोज टू शोज जो कि डोमेस्टिक राइवल्स बना रहे हैं, नेचुरली दे अंडरस्टैंड द मार्केट, द कंट्री मच बेटर. The company used to have an imperial model of commissioning with executives in Los Angeles cooking up ideas French people might like. ओके, सो ये कह रहे हैं कि इनका ये लॉस एंजलिस में बैठ के ये लोग ऐसे आइडियाज बनाते हैं जो हो सकता है फ्रेंच लोगों को पसंद आ जाए. नाउ नेटफ्लिक्स इज ऑफिसेज अक्रॉस यूरोप बट अल्टीमेटली द बिग डिसीजन रेस्ट विद अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स. दिस मेक्स यूरोपियन पॉलिटिशियंस नर्वस. तो ये कह रहे हैं कि अब इनके ऑफिसेज तो है यूरोप में, पर जो बड़ा डिसीजन रहता है वो अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स के पास ही रहता है. इस वजह से यूरोपियन पॉलिटिशियंस दे रादर नर्वस. दे शुड नॉट बी. एन आयरनी ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन, यानी कि यूरोपियन लोगों को इकट्ठा करना, इज दैट ऑफन अमेरिकन कंपनीज दे फैसिलिटेटेड. गूगल ट्रांसलेट मेक्स यूरोपियन न्यूज़पेपर्स कॉम्प्रिहेंसिबल इवन इफ अ लिटिल क्लंकी फॉर द कॉन्टिनेंट्स नॉन पॉलीग्लॉट्स. पॉलीग्लॉट्स होते हैं मल्टीपल भाषा बोलने समझने वाले लोग. तो ये क्या कह रहे हैं कि यूरोपियन पॉलिटिशियंस को वरिड नहीं होना चाहिए यूरोपियन इंटीग्रेशन की. एक आयरनी ये है कि अक्सर अमेरिकन कंपनीज इसे फैसिलिटेट करती है. गूगल ट्रांसलेट को उठा के ले लो, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, बट यूरोपियन न्यूज़पेपर्स को वो कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि पढ़ने लायक बना पा रही है उन लोगों के लिए. यूरोप में लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं जो जो नहीं सारी भाषाएं बोलते हैं. सो इट्स एन अमेरिकन कंपनी विच इज एक्चुअली एनेबलिंग देम टू अंडरस्टैंड this, and it is actually getting European people together. American social media companies, they make it easier for Europeans to talk politics across the border. अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीज, राइट, कंपनीज अमेरिकन है पर यूरोपियंस को आसानी हो रही है पॉलिटिक्स डिस्कस करने में. दैट दे डू नॉट ऑलवेज लाइक टू हियर व्हाट दे से अबाउट ईच अदर इज अनदर मैटर. Now, Netflix and Friends, they pump the same content into homes across a continent, making culture a cross-border endeavor too. If Europeans are able to share a currency, bail each other out in times of financial need, and share vaccines in a pandemic, then they have to have something in common, even if it is just binging on the same series. Watching fictitious Northern and Southern Europeans tear each other apart 2000 years ago beats doing so in reality. तो यहाँ होता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही. इस पूरे पैराग्राफ की एसेंस ये है कि यूरोपियंस को इकट्ठा लाने में अक्सर आयरॉनिकली अगेन अमेरिकन कंपनीज का हाथ रहता है. ठीक है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट हो गया, राइट, सोशल मीडिया हो गया, जिसकी वजह से यूरोपियंस आपस में व्यूज एक्सचेंज और डिस्कस कर पा रहे हैं. देन द ऑथर इज बीइंग अ लिटिल ह्यूमरस आल्सो, ही सेइंग भले वो एक दूसरे की पॉलिटिकल व्यूज और बातें सुनना नहीं चाहते, वो अलग बात है. नाउ ही सेइंग नेटफ्लिक्स और फ्रेंड्स जो है वो सेम कंटेंट, दे आर पंपिंग द सेम कंटेंट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, राइट. कल्चर को एक क्रॉस बॉर्डर एंडेवर बना रहे हैं, मतलब अच्छे से लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्रॉस कल्चर, क्रॉस बॉर्डर. अगर देन ही इज मेकिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर यूरोपियंस को एक साथ रहना है, उन्हें करेंसी शेयर करनी है, उन्हें एक दूसरे को हेल्प करनी है फाइनेंशियल उसमें, उन्हें वैक्सीन शेयर करनी है, तो कुछ एक बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए. कुछ एक ऐसा होना चाहिए जो कि वो उन लोगों को लगे कि ओके वी हैव दिस इन कॉमन इवन इफ इट इज जस्ट वॉचिंग द सेम सीरीज. दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से ओवरऑल. Interesting paragraph. I found it quite interesting. I think Emily in Paris का भी recent season है. So Emily in Paris also received a lot of backlash for not actually showing French people the way that they are. It's very insensitive. It's not an insider view of their culture. It's an outside perspective. Like he said कि अभी भी American executives बैठ के they are the ones who are making decisions, और वो बैठ के सोच रहे हैं कोई ऐसा शो बना सकते हैं जो हो सकता है फ्रांस में किसी को पसंद आ जाए without knowing the local quirks, without knowing the culture well. सो मुझे लगता है उसके आसपास हो सकता है ये लिखा गया हो. लास्ट ईयर भी उसका सीजन आया था. सो इंटरेस्टिंग पैराग्राफ. नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 एंड वील डिस्कस इट देन. ओके, आई होप यू हैव एन आंसर. पॉज करके think of an answer and let's discuss. Based on information provided in the passage, all of the following are true except. Okay. Number one, European television productions, they have the potential to become global hits. Only half of Netflix original programming in the EU is now produced in America. National broadcasters dominate in the EU in terms of total television viewing hours. Netflix has been able to transform itself into a truly European entity. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सारे सही है एक को छोड़ के. तो यार 3 के लिए तो क्लियर डेटा पॉइंट था. यहाँ पे टोटल व्यूइंग आवर्स नेशनल ब्रॉडकास्टर्स अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, ये यहाँ कहीं लिखा होता है यूरोप इज एन एजिंग कॉन्टिनेंट. और सिर्फ 1/3 नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस है, तो 2/3 बाकी का शेयर हो गया, राइट, विच इज द नेशनल ब्रॉडकास्टर्स, लोकल ब्रॉडकास्टर्स. दिस वी हैव क्लियर डेटा.
European television productions have the potential to become global hits. For this also we have clear data. ये इन्होंने लिखा था ये French crime caper on Netflix, a French crime caper on Netflix, Lupin. It became a global hit. So definitely there is potential to become global hits. We have clear data. Only half of Netflix original programming in the EU is now produced in America. अगेन यहाँ इन्होंने बोला कि पहले 75% था और अब उसका जस्ट हाफ हो गया है. नाउ द फिगर इज हाफ जो कि अमेरिका में प्रोड्यूस होता है. So for this also we have a clear data point. Netflix has been able to transform itself into a truly European entity. ये वैसे भी फॉल्स है क्योंकि ये कह रहे हैं अभी भी जो बिग शॉट्स है वो अमेरिकन ही कॉल करते हैं. उनके शोज में वो लोकल क्वर्क्स नहीं होते हैं. ये सब वैसे भी लिखा हुआ था और बाकी तीनों के लिए हमारे पास क्लियर डेटा पॉइंट है. 4 will be our answer. Now try the next question number 2. Okay, let's discuss question number 2. I hope you have a answer by now. Pause करके आंसर सोचो. The author sees the rise of Netflix in Europe as a unifying force, a looming cultural threat, filling an entertainment gap, an economic threat. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ऑथर ने क्या बोला राइज ऑफ नेटफ्लिक्स इन यूरोप के बारे में, कि अक्सर ऐसा होता है यूरोपियन इंटीग्रेशन एक अमेरिकन कंपनी नेटफ्लिक्स ऑल्सो एन अमेरिकन कंपनी राइट, कि यूरोपियंस लोगों को इकट्ठा करने के पीछे अक्सर एक अमेरिकन कंपनी का हाथ होता है. इन्होंने दो एक एग्जांपल्स दे दिए, गूगल ट्रांसलेट का एग्जांपल दे दिया, सोशल मीडिया का एग्जांपल दे दिया. फिर इन्होंने क्या बोला कि इफ यूरोपियंस आर एबल टू शेयर अ करेंसी, बेल ईच अदर आउट इन फाइनेंशियल नीड, शेयर वैक्सीन, तो दे नीड टू हैव समथिंग इन कॉमन even if it is just binging on the same series, right? So I think we have very, very clear data. Point number 1, that the author is very clearly seeing it as a unifying force. और किसी के लिए कोई हमारे पास डेटा पॉइंट नहीं है. Now try this. Which of the following research findings would weaken the author's conclusion in the final paragraph? So you can pause it and try. Okay, let's take a look. Research shows that Netflix has been gradually losing market share to other streaming television service providers. Which of the following research findings would weaken author's conclusion? Again, the question is so specific in the final paragraph. So we have to go back to the final paragraph again. Let's take a look. They have been gradually losing market share to other streaming television service providers. ऐसी कोई बात होती हुई नजर नहीं आई थी ऑप्शन लास्ट पैराग्राफ में. Third, research shows that older women across the EU enjoy watching romantic comedies on Netflix, whereas older younger की कई बात हुई थी पैराग्राफ में या पूरे आरसी में, straight away eliminate करो. Research shows that Netflix hits produced in France, they are very popular with North American audiences. Okay. So again, now when we talk about final paragraph, while 4 के लिए हो सकता है कुछ डेटा हो कि फ्रांस में बने हुए ये नॉर्थ अमेरिका में या दुनिया में पॉपुलर है, लास्ट पैराग्राफ जो ये था यह सारी इंटीग्रेशन और ये सारी टाइप की बातें हो रही थी अभी जो हमने देखा. तो एक यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसर्च शोज दैट देयर इज अ वाइड वेरिएंस, इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन पॉपुलैरिटी इन व्यूइंग ऑफ नेटफ्लिक्स शोज अक्रॉस डिफरेंट ईयू कंट्रीज. यहाँ ऑथर ने बहुत क्लियरली बोला था कि हमें लोगों को एकत्रित करने के लिए, यूरोप में इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए कॉमन फैक्टर. इवन इफ दैट कॉमन फैक्टर इज द फैक्ट दैट दे वॉच द सेम सीरीज, राइट, दैट इज व्हाट विल गेट देम टुगेदर डिस्कसिंग इट एंड ऑल ऑफ दैट. हियर देयर सेइंग कि अक्रॉस ईयू लोग जो चीजें देखते हैं उनमें बहुत डिफरेंस है. लोग अलग अलग चीजें देखते हैं यूरोप में. तो ये जो चीज इसने बोली थी कि सेम सीरीज देखने वाली बात से कि लोग ये डिस्कस करके थोड़ा क्लोज फील कर सके, तो ये डायरेक्टली निगेट हो जाती है. अगर नेटफ्लिक्स शोज जो है यूरोपियन उसमें लोग अलग अलग देख रहे हैं और वो सेम शो नहीं देख रहे हैं, जस्ट डायरेक्टली निगेटिंग व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि यार सेम शो देख के कुछ तो यूनाइटेड उसकी फीलिंग कुछ तो आनी चाहिए कॉमन पॉइंट की. सो 2 इज आवर आंसर. Okay, this is a good question. Let's quickly do this as well. Pause the video, try it. So question 4. Based only on information provided in the passage. ये अगर नहीं भी लिखा होता ना तो यही ऐसे ही करना होता है. Which one of the following hypothetical Netflix shows would be more successful with audiences across the EU? A transatlantic romantic drama set in Europe and America, an original German TV science fiction production, a murder mystery drama, an Italian comedy show. तो अगर मैं यहाँ देखूँ बहुत क्लियर डेटा पॉइंट है. नॉट एवरीथिंग वर्क्स अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉमेडी समटाइम्स स्ट्रगल्स. ठीक है. ये वायलेंस इन्होंने जो बोला कि इसकी ज्यादा यूनिवर्सल अपील होती है. जर्मन टेलीविजन इज नॉट बिल्ट फॉर एक्सपोर्ट, ये भी क्लियरली लिखा हुआ है. तो 3-4 चीजें तो मुझे यहीं से दिख गई. अब मैं एक बार अगर ऑप्शंस देखूं, इटालियन कॉमेडी इन्होंने क्लियरली लिख दिया, डज नॉट ट्रांसलेट, समटाइम्स एलिमिनेट.
An original German TV science sci-fi production. Eliminate. इन्होंने बहुत clearly बोला it's not built for export. Right. A transatlantic romantic drama set in Europe and America, a murder mystery drama. तो मुझे नहीं लगता रोमांस की पर से कोई बात मुझे पैसेज में दिखी। और 3 के लिए मेरे पास क्लियर डेटा पॉइंट है, मर्डर मिस्ट्री ड्रामा, मर्डर वायलेंस, राइट। इन्होंने ये जो मर्डर टाइप किया कि वायलेंस बहुत ज्यादा चलती है, वायलेंस की एक यूनिवर्सल अपील होती है, ये लिखा हुआ है ऐसा। तो 3 के लिए मेरे पास क्लियर डेटा पॉइंट है, 2 और 4 क्लियरली उल्टे हैं। जहां तक मुझे दिखा 1 में रोमांटिक उसकी कोई बात नहीं हुई थी, तो ये एलियन है। 3 के लिए क्लियर डेटा पॉइंट है, 3 इज आवर आंसर। So that was about it for class 1 of this crash course for CAT 2024. Let me know in the comments if you like the series in any particular topics that you want me to cover instantly, although I will be covering all the topics going ahead. Please like, share, and subscribe if you like my work. Comment below, engage with my videos. And if you want to book a one-on-one mentoring session with me, you can find the link for that on my LinkedIn account. I've mentored over 15 CAT aspirants this year, and most of them have seen very positive, tangible results. They've seen tangible improvements in their VRC scores. So you can find the link below, and take care, keep preparing, take care of yourselves.